कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको स्टार्टअप बग है, अगर आप कुछ अपना करना चाहते हैं तो निकलिए अपने कंफर्ट जोन से और कर डालिए, ज्यादा मत सोचिए। इसके बाद इंडिया में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत चीजें टूटी फूटी हैं, यहाँ पे बहुत चीजें काम नहीं करती हैं। इसका मतलब ये कि बहुत सारी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। तो जो प्रॉब्लम है वही एक अपॉर्चुनिटी भी है। इतनी सारी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए कि बहुत सारे स्टार्टअप्स की जगह है। और एक स्टार्टअप को बेसिकली जब देश का प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े मंत्री और चीफ मिनिस्टर्स ये बोल रहे हैं कि स्टार्टअप पे वो प्राइड ले रहे हैं, तो अपने आप स्टार्टअप को बेसिकली और ज्यादा सपोर्ट मिलता है। You are bullish. I am very bullish. Very bullish. So Very you are bullish. looking at the Indian startup ecosystem growing with the same pace. Yes. नमस्कार। है कि तेरी चना केतरी मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ इस एपिसोड में इलेक्शंस की बात प्रदीप भंडारी के साथ इस एपिसोड में आप जानेंगे इंडियन ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे इंडियन स्टार्टअप्स एंड आल्सो वील टॉक अ बिट अबाउट how will the young electorate in the first time electorate impact the Karnataka elections 2023. So let's hit the ground running. Name, sir. Pradeep Bhandari. प्रदीप भंडारे नामधेयस्य। नमस्कार। इस वक्त मैंने भगवान विष्णु के दर्शन किए हैं and I am blessed to start the day with blessings of भगवान विष्णु. Now it is said in our mythology and our Sanatan Sanskriti that Bhagwan Vishnu is the preserver. But along with that, it is said that those who want to do good in business, they have so much to learn from Bhagwan Vishnu. Well, Bhagwan Vishnu is known with the characteristic of always being calm. के साथ में भगवान विष्णु कहा जाता है कि गौ माता के अंदर निवास करते हैं और गौ माता जो है हमारी सनातन संस्कृति की मूल धारा है और पूरी की पूरी रूरल इकोनॉमी को आप देखेंगे वो गौ माता के अराउंड सेंटर होती है। इसके साथ में इट इज ऑल्सो सेड दैट व्हेन यू डू दर्शन ऑफ भगवान विष्णु, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्रसाद के अंदर जिस तरीके से जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, भगवान विष्णु को जो वस्त्र पहनाए जाते हैं, ऑल ऑफ दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट and creating wealth and creating a business also requires a lot of effort. It requires you to be a lot calm. So when I talk about the Indian startups, ladies and gentlemen, it is a lot to learn with what our Hindu mythology speaks about, and it is also a lot to learn with the characteristics which are needed for the Indian startups to become globally relevant. Now, इस episode के अंदर, I really want to talk about the Indian startups because A, in Karnataka, 3% of the electorate is young. B, that the number of youth electorate in Karnataka have increased than what it was last time. It has increased with more than 2 lakh. But 3, if I look at the Indian growth story, the Indian growth story cannot be complete if I do not talk about the startups. Now, it's a fact that in India, the number of unicorns that were registered in 2022 were more than that in China. It is a fact that even in the space where I'm standing right now, Bangalore registered more startups than Singapore and Shanghai. It is a fact that out of 10 billion, out of the total startups in the country, 35% of the unicorns belong to this place, Bangalore. It is said that Bangalore is the startup capital of India. It is said that post-Prime Minister Narendra Modi created this environment of encouraging the startups across the country. There has been a massive boom in the Indian startup ecosystem. In fact, from 2016 to 2021, more than 10,000 startups alone registered in India. And that's why it's said that if the Indian growth story has to go forward, it is the Indian startups which have to go forward, and they have become a shining spot in the Indian growth story. So इसीलिए आज मैंने सोचा कि आपके साथ में मैं कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स से मिलूं और उन स्टार्टअप फाउंडर्स से चर्चा करूं कि कैसे वो जमीन से उठकर अपने स्टार्टअप को बड़ा कर चुके हैं, कैसे वो इंडियन ग्रोथ स्टोरी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
और अभी का जो एनवायरनमेंट सरकार प्रोवाइड कर रही है वो कितना उनके लिए कंड्यूसिव है. एंड यस वी विल आल्सो टॉक लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिक्स. लेट्स हिट ग्राउंड जीरो इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ इलेक्शंस की बात प्रदीप भंडारी के साथ. $13,000 से ज्यादा स्टार्टअप, $105 बिलियन से ज्यादा का स्टार्टअप इकोसिस्टम, पिछले 2 साल में $31 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टार्टअप हब. भारत के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में आज प्रदीप भंडारी एक ऐसे स्टार्टअप हीरो के साथ बात करेंगे जिनका सफर भारत की युवा पीढ़ी और भारत के एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रेरणादायक है. मिलिए अमित कुमार अग्रवाल से. ये NoBroker.com के CEO और सह संस्थापक हैं. 2013 में स्थापित इनकी प्रॉपर्टी टेक कंपनी की गिनती भारत के यूनिकॉर्न्स में की जाती है. यूनिकॉर्न यानी कि वो स्टार्टअप कंपनी जिसकी $1 बिलियन से अधिक की वैल्यू है. NoBroker.com ने रियल एस्टेट बाजार में ब्रोकर माफिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ के तहलका मचा दिया. बेंगलुरु में प्रदीप भंडारी ने इनके ऑफिस में जाकर इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश की क्या मोदी सरकार की पॉलिसीज से स्टार्टअप कम्युनिटी को फायदा हुआ है या नहीं. जानिए इलेक्शंस की बात प्रदीप भंडारी के साथ के दूसरे एपिसोड में. अमित, प्लेजर टू स्पीक टू यू. आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा. बहुत स्टोरीज आपके बारे में सुनी है, 80% पॉजिटिव, 20% नेगेटिव, बट यू बीन अ शाइनिंग स्पॉट ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, लेट मी से. सो थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मी. नो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. तो मैं थोड़ी हिंदी में ही बात कर रहे थे. हाँ. यू नो, एक ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे लोग एंटर करने से डरते हैं. करेक्ट. यू नो, और आपने उसमें एंटर करके जो एक माफिया है उसको ही आपने पीछे से खत्म कर दिया. हाउ वाज इट? तो इसकी शुरुआत तो इस बात से है कि हमें इस इंडस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं था. तो एक तो अच्छी बात है कि हमें कुछ पता ही था, तो हमें पता ही था क्या तकलीफें आने वाली हैं. तो हम लोग तो बेसिकली टिपिकल IIT एंड IIM टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग, इंजीनियर लोग. हमें तो बस अपने एक्सपीरियंस से ये बहुत ही अजीब सा विचार लगा कि ऐसा क्यों है कि आज मुझे किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, शाहरुख खान को भी भेजनी है, मैं भेज सकता हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट करे ना करे पर कनेक्ट कर सकता है किसी से भी. तो एक ओनर से क्यों नहीं मैं बात कर सकता डायरेक्टली, क्यों मुझे एक ब्रोकरेज पे करके जाना है. तो हमारा बस एक क्वेश्चन था ये, जिसका मुझे जवाब मिला नहीं, मुझे और मेरे को फाउंडर्स को, कि कैसे करें कनेक्ट एक प्रॉपर्टी ओनर को एक टेनेंट के साथ, एक बायर को एक सेलर के साथ, और क्यों हमें ब्रोकरेज देने की जरूरत है. उस सवाल से स्टार्ट हुआ. और उसके बाद फिर ये बात कि हाँ ब्रोकरेज इतना बड़ा मार्केट है और ब्रोकर काफ़ी एक तरह से गठित रहते हैं आपस में कि कोई और उनका मार्केट ना ले, वो तो रहा. उससे हमें थोड़ी परेशानियां भी आई रास्ते में. लेकिन धीरे धीरे कस्टमर्स ने बोला कि हाँ भाई हमें बचाना है ब्रोकरेज. तो आपका कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं था? जब पहले मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि आपके ऑफिस में घूम के हम बात करें. हाँ. बड़ा अच्छा आपने ऑफिस ये बनाया. बिल्कुल. और ये मतलब काफी एनर्जी और वाइब है इसमें. तो ये चीज बताइए, मैं बड़ा अचंभित हूँ इस बात से कि आप कह रहे हैं कि आपको इसके पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं था. तो आइडिया कैसा है? तो आइडिया ऐसा आया कि हम लोग बहुत सारे शहरों के अंदर घर चेंज करते थे. और हिंदी से लग रहा है कि आप यूपी साइड के हैं. हाँ. तो मैं बेसिकली यूपी साइड का हूँ, लेकिन मैं पूना में भी रहा, कलकत्ता में भी रहा और बैंगलोर में भी रहा. तो हर जगह ये होता था कि ब्रोकर खूब पैसे लेता था और आपका ना जो इनकम है उसमें रेंट ना करीब 1/3 या 1/4 या 40% तक होता है. अब उसमें 1 महीने का ब्रोकरेज ले जाना ना बहुत ज्यादा चुभता है, बहुत ज्यादा. और खासकर अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ जॉब में तो ये परसेंटेज बड़ा ही हाई रहता है. तो यही सवाल हुआ कि भैया ये क्यों देना है ब्रोकरेज, मुझे तो सीधे बात करनी है प्रॉपर्टी ओनर से. तो कोई प्लेटफॉर्म है क्या ऐसा? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं. पर हमने कहा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना. जब फेसबुक एग्जिस्ट करता है तो फेसबुक की तरह ऐसा क्यों नहीं है कि मैं बात कर सकूं प्रॉपर्टी ओनर से. तो अपने खुद के, हम तीनों के अपने निजी एक्सपीरियंस से ही आया ये कि यार इसको कोशिश करनी चाहिए कि सीधे बात करके देखें. खुद को जब घर देखने में बैंगलोर या कहीं पे रहने में जब आए होगे आप, घर देखने में दिक्कत होगी तब ऐसा नहीं दैट आल्सो इन. हाँ ऑफ कोर्स. तो हम जब खुद ही घर देखा तो हमें लगा कि यार पहले ब्रोकर भाप लेता है कि आपको आइडिया है कि नहीं है शहर का. नहीं है तो ठीक है, फिर मैं थोड़े महंगे वाले घर दिखाता हूँ या जो लेस मूविंग इन्वेंटरी वो दिखाता हूँ. तो हमारे एक्सपीरियंस से ही आया ये बात कि यार इस इंडस्ट्री में तो टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए. इंडस्ट्री का हमें कोई आइडिया नहीं था. हमने तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम लेके सोचा से क्यों नहीं कर सकते सॉल्व. सो
जैसे कि सब स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ में मैं देख रहा हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम दैट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व, बट अलोंग विद दैट देयर आर आल्सो चैलेंजेस इन द जर्नी। मैं आपकी जर्नी के बारे में भी पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि यू ऑल्सो फेस दिस ब्रोकर माफिया, बट उसके बाद मुझे बताइए 2020 से 21 में 60 करोड़ से रेवेन्यू 160 करोड़ तक करना ये कोई मैजिशियन ही कर सकता है, बट यू आर एबल टू डू दैट, सो हाउ वाज दैट पॉसिबल? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से सब पूरी टीम ने मिलकर साथ में किया। तो हम तीनों ने पहले स्टार्टअप स्टार्ट किया, पहले हमें 1 साल तक हमें किसी ने भाव नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने भाव नहीं दिया। हर इन्वेस्टर ने ये बोला कि ये तो कहीं अमेरिका में भी नहीं हुआ, कहीं चाइना में भी नहीं हुआ, तुम कैसे कर लोगे? तो हमने कहा यार यहाँ का हम वहाँ का नहीं पता, पर यहाँ का हमको पता है कि यहाँ तो जनता चाहती है ब्रोकरेज बचाना। फिर हम लगे रहे, हमें अगले 5 साल तक एक इंडियन स्टार्टअप, एक इंडियन इन्वेस्टर को छोड़ के किसी ने फंड नहीं किया। अगले कितने साल तक? 5 साल तक। 5 साल तक किसी ने नहीं किया, केवल विदेशियों ने किया। पर मुझे एक चीज बताइए, जैसे जब पहले साल में जब आप गए स्टार्ट, मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स मिलता हूँ, क्या करते हैं, उनके पास आइडिया रहेगा, हाँ। उसके बाद वो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, इन्वेस्टर ज्यादा भाव नहीं देते, पर आपको अगर 1 साल तक भाव नहीं दिया तो उस वक्त भी हाउ डिड यू कीप ऑन गोइंग? दैट इज द बिगेस्ट थिंग। वो तो बड़ा मुश्किल समय था, क्योंकि जितनी आपकी हवा बन गई होती है कि मैं IIT IIM का हूँ, सारी हवा निकल जाती है क्योंकि मार्केट में कोई किसी को मतलब नहीं है कि आपके बैकग्राउंड क्या है, ना कस्टमर को कुछ मतलब है। तो जॉब छोड़ के घर में बैठे हुए हैं, बिस्तर पे सोच रहे हैं कि 5 कस्टमर दिख रहे हैं साइड पे क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बार बार ना सुनना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको बार बार रिजेक्शन भी मुश्किल है। बड़ा टाइम है, और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप लोग IIT से पढ़ते हैं, IIM से पढ़ते हैं, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा पैसे की होती है। हाँ। और निश्चित ये, क्योंकि केपेबल आदमी को पैसा मिलना भी चाहिए, तो उस वक्त 365 दिन तक जब आपके आइडिया को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था, सो व्हाट केप्ट यू गोइंग? ये That is a very important question. Now you need to personalize this for me. मेरे को जनरल वाला ओपरा विनफ्री वाला ज्ञान देने के लिए what kept you going? तो मैंने बेसिकली मान लिया कि भाई करियर अभी 25 साल का बचा हुआ है, 10% उसमें अगर वेस्ट हो गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं। तो मैंने मान लिया 2 साल सुहा भी हो गए तो क्या हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम सही है और इसको परस्यू करेंगे लास्ट तक। और अब ना सुनना पड़ रहा है तो क्या करें, पर लगे रहेंगे। तो जब तक सारे पैसे खत्म नहीं हो जाते, जितनी भी सेविंग्स है, तब तक लगे रहेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा और लगे रहे। तो फिर जब 1 साल के बाद में फिर आपको कैसे इन्वेस्टर मिला? तो 1 साल के बाद फाइनली फिर हमारे जब नंबर्स थोड़े ठीक होने शुरू हो गए, तो हम एक इंडियन इन्वेस्टर ने, एलिवेशन पार्टनर नाम है उनका, उन्होंने हमें फंड दिया। लेकिन इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत वेल फंडेड है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लार्ज प्लेयर्स भी हैं, और इसमें एक बड़े प्लेयर बेसिकली बड़ा हुआ फिर वो बंद भी हो गया। तो उसके बाद अगले कुछ साल तक इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत डरे हुए थे। तो हमें जहाँ पे जो पैसे मिलते, हमने किसी साउथ कोरिया में किसी एक इन्वेस्टर से लिया, सिंगापुर में किसी से लिया, जापान में कोई एक बंदा था चेन्नई, उससे कुछ पैसे लिए। वो हमने करके अगले 4-5 साल तक हम काम चलाते रहे, और खूब कंजूसी से। हम तीनों फाउंडर कहीं जाते तो अडल्ट होने के बावजूद भी हम लोग एक्स्ट्रा बेड डाल के एक ही रूम में रुकते थे। ये कौन से साल की बात है? ये बात है 2015, 16, 17 की, जबकि हमारे बैंक में 15 से 18 करोड़ थे। स्टिल हमें हमेशा डर लगा रहता था। आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जो आजकल है ना सरल जीवन जीने की पूरी, क्योंकि ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि यू कम फ्रॉम अ लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन, और जनरली लोग आपकी ऑफिस में बैठता भी बात है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जनरली क्या होता है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई मुझे स्टार्टअप से पैसा कमाना है। कई स्टार्टअप इसी से शुरू होते हैं, तो आपकी तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पैसा कमाना, आपकी थी बिजनेस नीड को सॉल्व करना है। तो उसके बाद जब 15 करोड़ किसी आदमी के बैंक अकाउंट में होता है तो जाएगा, वेकेशन करेगा, सब करेगा। आप कैसे इसको चीज को नहीं कर रहे थे? नहीं, तो हमारा तो भाई मानना ये था कि पैसे की बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, बड़ी मुश्किल से बहुत पैसे मिले ये, तो अब इसको बिजनेस बिल्ड करने पे ही देना है। कोई भी मार्केटिंग करनी है तो उसमें जरा भी वेस्ट नहीं करना है। तो हमारे और कॉम्पिटिटर खूब खर्चा करते थे, लेकिन हम एकदम कंजूसी चलते थे। तो वो कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं ना, वो वाली कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए कि भाई पैसे की रिस्पेक्ट करो, उस पर रिटर्न आए तभी उसे इन्वेस्ट करो, वरना मत करो। उसी से हमने बेसिकली इसको बहुत लंबा चलाया, और धीरे धीरे कस्टमर्स बेसिकली जुड़ते चले गए। और जब 4 साल 5 साल बीत गए और जब कस्टमर्स संख्या बढ़ने लग गई, तब बाकी लोगों ने भी, इन्वेस्टर्स ने भी देखा कि अरे भाई तो कंपनी अच्छा कर रही तो है। इसमें जब ये ब्रोकर माफिया जो था, क्या वो ब्रोकर माफिया ने कोशिश नहीं करी कि यार इनको रोक दो वरना हमारा जो है धंधा पानी वो बंद हो जाएगा? तो हमारे ऑफिस पर एक अटैक हुआ, तो करीब 70-80 ब्रोकर आए ऑफिस के बाहर, और हमें लगा कुछ राजनीतिक कुछ प्रोसेशन हो रहा होगा, लेकिन वो बेसिकली आए थे मारपीट करने और ऑफिस बंद कराने। तो वैसा ऐसी एक्टिविटी होती नहीं है बैंगलोर के अंदर, बहुत ही रेयर है। बैंगलोर में बहुत रेयर है। हाँ, बहुत ही रेयर है। तो लेकिन अब ऐसी हुई, और फिर उन्होंने काफी मारपिटाई करने की कोशिश करी। एक आयरन ग्रिल डोर था, वो डोर हमने बंद कर लिया, तो वो अंदर नहीं आ पाए। पर काफी लोग घबरा भी गए, और फिर वो बाइक का भी डैमेज किया उन्होंने। वो वुमेन एम्प्लॉइज को भी रात में पीछा करते थे। तो फिर हमें रातों रात वो जगह छोड़नी पड़ी, और जब छोड़ी तभी भी वो रात में उन्होंने पीछा किया ट्रक का कि सामान कहाँ जा रहा है।
तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहा कुछ महीनों का, लेकिन थोड़ा ये भरोसा भी हो गया कि जो कर रहे हैं उससे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि देखो मेरा एक तो मानना है, जो कहते हैं ना कि जिसके जितने ज्यादा एनिमीज होते हैं उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होती है। Honestly, even when you face opposition and you know that certain people are opposing you, which means आप उनकी रोजी रोटी पर हमला कर रहे हैं, मतलब you're trying to create something जो उनके धंधे को चौपट कर सकती है। So I think that was a positive sign for you. But 60 करोड़ 160 करोड़ कैसे हो गया भाई? 2020 में 60, 2021 में 160 करोड़। इट्स अ, क्योंकि आजकल मैंने देखा है स्टार्टअप जो होते हैं वो वैल्यूएशन के ऊपर जाएंगे पर वैल्यू के ऊपर नहीं जाते। तो उनकी रेवेन्यू ग्रोथ इतनी नहीं होती, वो ग्रोथ की बात करते हैं पर रेवेन्यू ग्रोथ पे फोकस नहीं होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस नहीं होता है। तो या तो किसी को कोई दूसरा बाय कर लेता है, दैट इज हाउ इट हैपेंस इन मनी ऑफ द स्टार्टअप्स। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपने ये रेवेन्यू पे फोकस पे कैसे ध्यान रखा? तो हमें लगा कि भाई फाइनली हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसे बनाना। पैसे। तो इंडिया में ना इतनी पॉपुलेशन है कि बड़ा आसान है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स आप ले आओ, उनको फ्री में देते रहो सामान। तो इसलिए हमने बहुत जल्दी 2015 में ही, इससे पहले हमारे इन्वेस्टर बोलते हैं, हमने शुरू कर दिया कस्टमर से धीरे धीरे चार्ज करना। तो हमारा नो ब्रोकरेज मॉडल है और ऑप्शनल है, आप फ्री में यूज कर लीजिए पर आपको पेड प्लान्स भी। वो हमने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमें हमेशा डर लगा रहता था कि भाई इस उम्र में अगर ये बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्टर के पैसे तो बर्बाद हो गए और हमारा करियर जो है वो खराब हो गया। तो अपने करियर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पैसा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कस्टमर का भी भाव समझिए, कस्टमर को आप कुछ चीज फ्री में देंगे ना, कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा आपको। आप उसे 1 रुपया चार्ज करिए, कस्टमर एकदम जरा सी बात पे नाराज हो जाएगा क्योंकि अब उसे लगता है कि मेरा हक है, मैंने 1 रुपया दिया है। उससे कंपनी को भी लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है बिकॉज कंपनी फिर अपने टोस पे रहती है कि मुझे अच्छी सर्विस देनी है। तो जब आपने ट्रांजिशन किया पैसे नहीं चार्ज करने से पैसे चार्ज करने पे, तो उस समय क्या आपको कुछ कस्टमर डिप देखने को मिला था? तो हमने बेसिकली थोड़ी सॉफ्ट लैंडिंग टाइप करी थी कि हमने हर किसी को मजबूर नहीं किया, धीरे से किया। लेकिन आई एम श्योर ऊपर जिस पूरी जर्नी में बहुत बार डिप देखने को मिले हैं हमको, खासकर जब पैसे चार्ज करने की कोशिश करिए। पर वो हिम्मत रखनी पड़ती है आपको, क्योंकि अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो तो कस्टमर पैसे देगा, क्योंकि फाइनली हम ही नहीं देगा तो एक ब्रोकर को देगा, ब्रोकर को तो 25,000 रुपए देगा, हम तो 3,000 रुपए ही बोल रहे हैं। तो आई थिंक वो बेसिकली तो हिट एंड ट्रायल है, उसमें बहुत घबराने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा भरोसा रखना पड़ता है। अमित जी, मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूँ कि अभी मुझे लगता है कि इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा ही सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर आप डेटा उठा के देखिए कि इस शहर के अंदर ही सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर होते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन भी इसी शहर में आती है $10 बिलियन का। 35% यूनिकॉर्न्स भी यहाँ पे, आप खुद एक यूनिकॉर्न हैं। दोस्तों अमित जी की जर्नी सो इंस्पिरेशनल। कोई भी अगर बडिंग स्टार्टअप फाउंडर इनकी जर्नी को देखेगा कि कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुंचे, और आज जो इनकी कंपनी की वर्थ जो है मोर देन $1 बिलियन है, और यूनिकॉर्न बनाना मजाक का खेल नहीं होता है। और देश तभी आगे बढ़ता है जब ज्यादा कंपनीज वेल्थ जनरेट करती। दैट्स हाउ इट हैपेंस विद एनी कंट्री। सो यू आर व्हील इन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या बैंगलोर में रहने से भी फायदा हुआ आपको कि बैंगलोर ने कोई इकोसिस्टम प्रोवाइड करा? इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बैंगलोर में रहने से हमें बहुत फायदा हुआ। बैंगलोर में ना समहाउ बैंगलोर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द इंडिया बोलते हैं। ये ऐसा क्या आपके हिसाब से, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है कि इसको स्टार्टअप कैपिटल क्यों कहते हैं? मेरे ख्याल से ना इसका हिस्टोरिक रीजन है कि यहीं पर बेसिकली शुरुआत में इन्फोसिस, विप्रो 1990 के अंदर जब कंपनीज आनी शुरू हुई तो समहाउ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि यहीं पे मल्टीपल कंपनीज आ गई, यहीं पे लोग आ गए, तो एक आईटी का एक पूल बन गया, तो टेक्नोलॉजी का एक टैलेंट पूल बन गया। तो हमारे जैसे लोग भी जो कि नॉर्थ से हैं, या पहले मैं बॉम्बे में रहता था, उनको भी लगा कि यार बैंगलोर में आना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो काफी पॉपुलर हो गया स्टार्टअप, लेकिन 2014-15 में जब हम किसी को हायर करते थे तो उसके घर में बात करनी पड़ती थी कि भाई ज्वाइन करने दो इसको। कई पापा ने मना कर दिया, कई मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं स्टार्टअप बंद हो जाएगा, तुम कहाँ ज्वाइन कर रहे हो। अब फिर भी शार्क टैंक और ये सब आने के बाद हो गया कि स्टार्टअप थोड़ा ग्लैमरस हो गया, थोड़ा ओवर ग्लैमरस ही हो गया है। लेकिन उस टाइम बड़ा मुश्किल था। लेकिन बैंगलोर शहर में वो लोग मिलते थे जिन्होंने एक स्टार्टअप में काम किया और कंफर्टेबल दूसरा स्टार्टअप ज्वाइन करने के लिए। तो समहाउ आई थिंक हिस्टोरिक रीजन की वजह से ऐसा हो गया है कि टैलेंट भी यहीं आ गया, कंपनीज भी यहाँ आ गई, तो फिर वो बेसिकली एक चक्कर जो होता है ना, पॉजिटिव वर्चुअस साइकिल, वो बन गया। अच्छा, एक और चीज आपने जो कही कि पहले जो होता था कि स्टार्टअप्स के लोग नहीं मिलते थे, और इसमें एक और पूछना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा भी स्टार्टअप पे बहुत ज्यादा पुश दिया गया है। ऑनेस्टली स्टार्टअप इज नाउ बिकम अ कूल वर्ड। पहले इट वाज नॉट अ कूल वर्ड। पहले
लोग 3 बार सोचते थे स्टार्टअप को ज्वाइन करने या खोलने में भी। करेक्ट। अब आदमी तो बोलता है एक स्टार्टअप करके देखते हैं हाँ क्या होगा क्या हाँ। नहीं होगा। सो डू यू थिंक दैट जो से द गवर्नमेंट ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश करी, इज इट फैसिलिटेटिव फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम या इट इज सेम एज जैसे पहले होता है? नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ा है। तो ये भी काफी इसका विस्तृत इसका जी। उत्तर है। तो पहला तो ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज करी है, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने इसको बहुत एक्टिवली इनकरेज किया है वर्बली। तो जहाँ तक पॉलिसीज की बात है वो तो आपको पता ही है कि बेसिकली हर बजट के अंदर जो इनकम टैक्स हॉलीडे है वो बेसिकली बढ़ाते हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो कर ही रहे हैं। और साथ में ये भी किया है कि जो DPIIT है, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उसने स्टार्टअप इंडिया को इनकरेज किया है। तो मेरे ही बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप रजिस्टर किया, फिर रिकॉग्नाइज हुआ, रिकॉग्नाइज होने के बाद उसको इंक्यूबेटर एसिलेटर का एक्सेस मिला, और फिर उनको सरकार ने, गवर्नमेंट ने उनको या तो ग्रांट दिया या फिर सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया। और फिर अच्छा, आपकी जान पहचान में ऐसे लोग हैं जिनको मिला? हाँ, तो मेरे जान पहचान में ही लोग हैं जिनको जिनका स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हुआ स्टार्टअप इंडिया में, फिर उन्होंने सॉफ्ट लोन लिया। और तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत अच्छा कुछ कर रही है, तो उन्होंने वहाँ टी हब बनाया है और एक वी हब बनाया है जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो मेरी ये जानने वाली जो एक बेसिकली महिला है, उन्होंने वहाँ 50 लाख का सॉफ्ट लोन लिया और वहाँ पे वो शिफ्ट हो रही हैं। अब तेलंगाना गवर्नमेंट से बात कर रही हैं कि आप हमें और एक्सेस दे दीजिए। एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, और गिफ्ट सिटी ने भी, जो कि अहमदाबाद में है, कि जहाँ पर आप जो चीज़ें वैसे गवर्नमेंट आपको करने नहीं देती, RBI IRDA आपको करने नहीं देता, वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन में आपको कुछ करना है तो रेगुलेटरी एक सैंड बॉक्स है, वहाँ पे आपको करने देंगे। तो एक तो ये सब गवर्नमेंट की बेसिकली पॉलिसीज जो कि बहुत ही अच्छी है। और दूसरा मैं बोलूँगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी आके और गवर्नमेंट में जो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे इतने यूनिकॉर्न हो गए, जैसे आपने मुझे बोला कि उन्होंने, राजनेता ने बोला कि इतने यूनिकॉर्न हो गए, उससे क्या होता है कि एक प्राइड फील होता है आपको। एक स्टार्टअप को बेसिकली जब देश का प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े मंत्री और चीफ मिनिस्टर्स ये बोल रहे हैं कि स्टार्टअप पे वो प्राइड ले रहे हैं, तो अपने आप स्टार्टअप को बेसिकली और ज्यादा सपोर्ट मिलता है। फिर पेरेंट्स भी ओके हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, आप, मेरा बेटा या मेरी बेटी कर ले अपना स्टार्टअप। तो ये क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब अगर ऊपर से एक सपोर्ट आता है या एक आता है कि भाई जिसको एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि जिसमें पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। पर साथ में मुझे एक और चीज बताइए, जब आप रिक्रूट करने जाते होगे, खुद अगर अपने IIT और IIM में आप जाओगे, तो क्या अब आसान हो रहा है भाई स्टार्टअप्स के लिए? आर यू थिंकिंग दैट टॉप टियर कॉलेजेस के अंदर भी लोग स्टार्टअप्स में आना चाहते हैं, कि अभी उनका वही प्रेफरेंस है कि कितना पेचेक मिलेगा IIT IIM से? नहीं, अब तो स्टार्टअप में बहुत ज्यादा प्रेफरेंस है। हालांकि पेचेक के अंदर भी स्टार्टअप बहुत अच्छा पेचेक दे रही है, आपको पता ही है, तो वो तो बेनिफिट है ही। लेकिन हाँ, आज से 5, 7, 8 साल पहले ना पेरेंट्स और इवन प्लेसमेंट कमेटी के लोग भी डरते थे, क्योंकि तब ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे जब किसी ने ऑफर दिया और बाद में वापस ले लिया, वो स्टार्टअप चली नहीं। उसके बाद भी बहुत सिस्टम में मैच्योरिटी आ गई है। अब लोग ऑफर तभी देते हैं जब उन्हें पता है वो उसे ऑनर करेंगे। और स्टार्टअप के ना सक्सेस स्टोरीज बहुत बन गए हैं पिछले 5-7 साल के अंदर। बहुत सारे यूनिकॉर्न बन गए हैं, डेकाकॉर्न बन गए हैं, कई कंपनीज लिस्ट हो गई हैं, सोमिकॉर्न्स भी बनने का। हाँ, और बहुत सारे लोगों को उनके ESOP बिक गए हैं, तो उनको पैसे भी मिले हैं। तो उससे ना ये पूरा सिस्टम भी बहुत मैच्योर हुआ है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट स्टेज पे खड़े होकर स्कीम्स अनाउंस करती है और प्राइड लेती है यूनिकॉर्न के बनने से, तो उससे भी पूरे सिस्टम को बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं अमित जी कि इतने सारे लोगों को आप एम्प्लॉय कर रहे हो, मैं लोगों के चेहरे में एक सेटिस्फैक्शन, सिंसेरिटी और खुशी, तीनों चीज देख रहा हूँ। किसी के चेहरे पे खुशी देख रहा हूँ, किसी के चेहरे पे सेटिस्फैक्शन देख रहा हूँ, और किसी के चेहरे पर मैं देख रहा हूँ कि हाँ कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, विच इज। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसके स्टार्टअप इकोसिस्टम को इन आउट जानते हैं, आपने खुद सक्सेस टेस्ट किया है। हिंदुस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीरे धीरे मैच्योर होते जा रहा है ना। हमने चाइना से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर किए। Are you seeing a time कि Indian startups can defeat the United States of America की startup ecosystem को? क्योंकि अल्टीमेटली विश्व गुरु या हम लोग जिस तरीके से बड़ा बन रहे हैं, हम और बड़ा तभी बन सकते हैं जब और हमारी कंपनीज बेहतर करें। ये तो हर कंपनी, हर कंट्री की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऐसी रही है। चाइना लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी कंपनी ज्यादा फॉर्च्यून 500 में आ रही है। पहले कुछ नहीं आती थी, 2002 के समय में, अब 100 से ज्यादा कंपनीज आ रही। इनफैक्ट अमेरिका को उसने बीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिस हिसाब से हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम जा रहा है, जिस हिसाब से इस वक्त हमारी कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ रही, वैल्यू बढ़ रही, और वो फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट है, क्या आने वाले सालों में ऐसा हो सकता है कि हम अमेरिका के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को
पिछाड़ सके या उसके बराबर आ सके? नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अब आप देखिए तो इवन वर्ल्ड भर में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेसिकली एहसास हो रहा है कि चाइना जो है वो उसकी स्टोरी काफ़ी आगे निकल चुकी है। तो जिन कंपनीज को बड़ा होना था वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, और जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा इंडिया के साथ ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ पर आज चाइना है इंडिया शायद वहाँ से आज 5 साल या 10 साल बाद वहाँ पहुँचेगा। तो अब वर्ल्ड भर के अंदर लोगों को दिखता है कि इंडिया बहुत एक स्वीट स्पॉट है, जहाँ पर बेसिकली जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, RBI है, देखिए इतना कुछ वर्ल्ड में हुआ बैंकिंग के अंदर, लेकिन इंडियन बैंक्स फिर भी हमेशा सुरक्षित रहे। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, यंग पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, कस्टमर्स बेसिकली एक बहुत बड़ी संख्या है। और दूसरी बात इंडिया में एक अच्छी बात ये है कि यहाँ बहुत चीज़ें टूटी फूटी हैं, यहाँ पे बहुत चीज़ें काम नहीं करती हैं। इसका मतलब ये कि बहुत सारी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। तो जो प्रॉब्लम है वही एक अपॉर्चुनिटी भी है। इतनी सारी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए कि बहुत सारे स्टार्टअप्स की जगह है, और करोड़ों की पॉपुलेशन है जो कि बेसिकली इनको यूज़ करने को तैयार है। आप ही देखिए कितने कुछ साल पहले ही ओला, फ्लिपकार्ट, स्विगी, इन सबको यूज़ करने वाले लोग कहाँ थे, लेकिन अब कस्टमर का बिहेवियर ही चेंज हो गया है। अपने ही मोबाइल फ़ोन में कितने सारे ऐप हैं, कितने सारे पेमेंट है जो हम कर रहे हैं। अब तो हम घर से बाहर निकलते हैं, बहुत बार वॉलेट लेके नहीं जाते क्योंकि UPI से हो जाता है। मैं तो अभी मैं कर्नाटका में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं गांव में रामनगरम डिस्ट्रिक्ट के इतने गांव में जा रहा हूँ, वहाँ पे भी 30 रुपए 20 रुपए का नारियल मैं UPI से लेता हूँ। तो देखिए ये आपके सामने चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में, नारियल UPI से मैं लेता हूँ, और वो भी पिछले कुछ सालों में चेंज हुआ है। तो जब पिछले 3-4 साल इतना बड़ा चेंज कर सकते हैं कि पैसे का आदान प्रदान का तरीका चेंज हो जाए, तो अगले 10 साल में तो बहुत ज्यादा। You are bullish. I am very bullish. Very bullish. So Very you are bullish. looking at the Indian startup ecosystem growing with the same pace. Yes. तो अगर कोई एक यंग बच्चा, आखिर में पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहा है, इस इंटरव्यू को देख रहा है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अगर अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है, तो क्या आप उसको मैसेज दोगे, क्या उसको ध्यान रखना है? What has been Amit's learning through this entire journey? तो मैं 2 मैसेज दूंगा। पहला तो मेरा मैसेज ये है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको स्टार्टअप बग है, अगर आप कुछ अपना करना चाहते हैं, तो निकलिए अपने कंफर्ट जोन से और कर डालिए, ज़्यादा मत सोचिए इसके अंदर। और दूसरा बेसिकली मैं बोलूँगा कि कस्टमर के बारे में हमेशा सोचिए। अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, लेकिन कस्टमर बहुत डिमांडिंग है इंडिया का, और चेंज होता रहता है। तो कस्टमर को अपना सेंट्रल पीस बनाइए, कस्टमर को अपने सेंटर में रखिए, और ऐसा कंपनी बनाइए जो रेवेन्यू जल्दी जल्दी कमाए, क्योंकि एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव फाइनली यही होता है कि रेवेन्यू बना के प्रॉफिटेबल बने। बातचीत खूब हुई और हम अमित अग्रवाल जैसे एंटरप्रेन्योर्स से बहुत प्रेरित भी हुए। क्या आगामी कर्नाटक चुनाव में अर्बन वोटर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, बिजनेस कम्युनिटी का विकास एक अहम मुद्दा बनेगा? देखते रहिए इलेक्शंस की बात प्रदीप भंडारी के साथ, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।